Good morning, dear student. Myself Amit Tripathi. Guys, you're welcome in my class. Today class, I'm not taking on the board with the help of marker. Today class is based on the some animated slide. Due to in this critical situations, I am unable to make your video with the help of marker and board. So I will try to give our best in this video, and I hope you will like this. The previous class I will already discuss about the light, properties of light, image, types of image, spherical mirror and its type. Guys, in today topic, that is the important for upcoming topic, that is the image formation, ray diagram with the help of spherical mirror. And in CBSE board examinations, in today topics 2 marks questions will come in your examination. So this is the important for also board examination and also for the upcoming topics of these chapters. Okay, so we will start your lecture, that is second lecture, with the help of some animated slide. The first topic, that is the important definition related to the spherical mirror, and second one is the some rules to obtaining the image formed by the spherical mirror. So guys, we are going to start your second lecture. The topic is important definition related to spherical mirror, and second one is rule for obtaining image formed by the mirror. First we discuss the important definition related to spherical mirror, and then rule for obtaining image formed by the mirror with the help of animated slide. So first we start the important definition related to the spherical mirror. In these sections we learn about these 7 definitions. The first one is the center of curvature, radius of curvature, pole, principal axis, aperture, principal focus, and then focal length. Guys, these definitions is also important for your board examination, and with these definitions, how in which symbols we represents और हाउ वी यू रिप्रेजेंट्स इन द स्फेरिकल मिरर, कैसे इसको आप स्फेरिकल मिरर में रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है. और ये यूज़ होगा आपका जब आपको हम बताएंगे रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर. ओके, तो क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में इससे डेफिनेशन के भी पूछे जाते हैं. तो डेफिनेशन में आपसे ये पूछता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर विद एंड आल्सो शो द डायग्राम. ठीक है, तो आपको इसमें से दे देगा डेफिनेशन लिखने के लिए, तो आपको डेफिनेशन लिखेंगे और डायग्राम में शो करेंगे. तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, गाइज, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड about the spherical mirror. There are 2 types of spherical mirror. One is the concave mirror and second one is the convex mirror. If the reflecting surface of the mirror is curved inward direction, the mirror is known as the concave mirror, and if the reflecting surface is curved in outward direction, the mirror is known as the convex mirror. Okay, then how you define the center of curvature? Guys, आपने कर्व मिरर लिया था, तो ये देखिए कर्व, सॉरी, मिरर आपका जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है. स्फेरिकल शेप का मतलब वो किसी एक स्फेयर का पार्ट होगा. जिस स्फेयर का पार्ट होगा दैट मीन्स उस स्फेयर का एक कोई सरफेस सेंटर पॉइंट भी होगा. उस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. गाइस, द डेफिनेशन इज रिटन हियर. Center of curvature of a spherical mirror is the center of imaginary sphere. The meaning of imaginary sphere means, देखिए हमने इस फिगर में डॉटेड लाइन से जो आपका स्फीयर शो किया है, ये आपका ओरिजिनल स्फीयर था, जिससे कट करके हमने रेड से देखिए शो किया है. वो रेड से जो शो किया है वो आपका है स्फेरिकल मिरर. तो फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है नीचे लिखा हुआ कॉनकेव मिरर, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में है. और दूसरा है आपका सेकंड फिगर में कॉन्वेक्स मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में है. तो दोनों किसी ना किसी स्फीयर के पार्ट होंगे. जिस स्फीयर के पार्ट होंगे उसी स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा
उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन हाउ यू डिफाइन द डेफिनेशन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर इमेजिनरी स्फेयर का सेंटर होता है जिसका वो मिरर पार्ट होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज लाइज ऑन, कहाँ पे लाई करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दोनों ऑप्शन में से जो भी होगा आप उसको टिक करेंगे, वो राइट होगा। एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, तो उसके बिहाइंड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी आपका सिंपल डेफिनेशन इसका भी है। और जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया, जो भी आपका स्फीयर होगा उस स्फीयर का रेडियस भी होगा। रेडियस मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो देखिए इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि रेडियस, जो आप मैथमेटिक्स में सर्कल पढ़ते हैं तो वो सर्कल का जो रेडियस होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आर से। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा जब आपको यूज़ करना होगा न्यूमेरिकल में तो आर की वैल्यू अगर दी गई होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो उसको आप कैपिटल आर से ही लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इस देखिए फिगर में हमने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक लाइन से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस है। इसमें कुछ हमको बहुत कुछ बताना नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिक्स की चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। फर्स्ट आपका है कॉनकेव मिरर और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम बोलेंगे पोल। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पी। पोल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। तो देखिए हमने पी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तक आपको हमने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दो पॉइंट इसमें से आपको मिले, एक मिला सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा मिला आपको पोल। उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो डेफिनेशन, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस देखिए दोनों में हमने ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई जा रही है। दैट मीन्स जो लाइन पीसी रिप्रेजेंट हो रही है वो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट, अपर्चर। अपर्चर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। गाइस देखिए हमने जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, उस रेड कलर के टॉप पे, दोनों मिरर के टॉप पे देखिए तो वहाँ पे हमने लिखा है M1 और बॉटम पे हमने लिखा डॉटेड शो करके M2। दोनों पॉइंट आपको दिख रहे होंगे M1 और M2। दिस M1 M2 लाइन इज द अपर्चर ऑफ दीज मिरर। दैट मीन्स कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एंड पॉइंट होगा दोनों साइड का, उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ मतलब क्या, अब लेंथ आपको ये मेजरमेंट करना है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज द अपर्चर, ठीक है। द सिंपल डेफिनेशन, दैट इज द डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर देखिए रिप्रेजेंट किया हमने M1 M2 लाइन से दोनों फिगर में। दैट M1 M2 लाइन रिप्रेजेंट्स द अपर्चर ऑफ द मिरर। ओके, नेक्स्ट, principal focus. It is the point on the principal axis of the mirror at which the light rays coming parallel to principal axis are actually meet
or appear to meet after reflection. It is represented by capital F. अभी देखिए यहाँ पे हम आपको बिल्कुल वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे रे आपकी कैसे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे पास हो रही है। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी अभी आपने डिफाइन किया, एक बार आप देखिए सबसे पहले कि ये रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल to principal axis are actually meet. Light rays coming parallel to the principal axis. तो principal axis आपको दिख रहा होगा, CP लाइन जो ब्लैक कलर की लाइन आपको सब बड़ी दिख रही है वो आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए वन बाय वन लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कैसे आ रही है। ये देखिए फर्स्ट लाइन आ रही है फर्स्ट फिगर में कॉनकेव मिरर में, ये फर्स्ट पैरेलल रेज आपकी हो गई, सेकेंड पैरेलल रेज ये हो गई, थर्ड पैरेलल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स ये जो फोर लाइंस आप भी रिप्रेजेंट किया हमने, दीज रिप्रेजेंट्स द पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में आ गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी मीट एक्चुअली ऑन एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए अब ये भी इंसिडेंट हो गई, अब इसका रिफ्लेक्टिंग पाथ देखिए, फर्स्ट लाइट रेज जो अभी आपकी आई थी उसका रिफ्लेक्टिंग पाथ देखिए, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, सेकेंड का रिफ्लेक्टिंग पाथ जहाँ पे आपकी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेज कट की थी प्रिंसिपल एक्सिस पे, सेम पॉइंट पे आपकी सेकेंड रे भी कट कर रही है, थर्ड सेम पॉइंट से वो भी जा रही है, उसी पॉइंट पे मिल रही हैं, फोर्थ वो भी उस सेम पॉइंट से जा रही है। ओके, तो ये आपने देखा अभी कॉनकेव मिरर में। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, फिर एक पॉइंट आगे लिखा गया है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आ रही है, देन दिस इज द सेकेंड लाइट रे विच इज आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ विच इज आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इनका पाथ देखिए, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है एक्चुअली मीट ऊपर, आर अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअली मीट आपका होगा कॉनकेव मिरर में, अपीयर टू मीट होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। देखिए कैसे, ये देखिए रिफ्लेक्टेड रेज, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेज आपकी इस तरीके से वापस जाएगी, ये सेकेंड, एंड देन दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज, दैट मीन्स आपको हमने बताया था कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे जो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्स करता है। बट इनको अगर इन लाइट रेज को हम इस मिरर के बिहाइंड 10 मिनट पीछे की तरफ हम अगर डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट इनका अपीयर होगा कि वहाँ पे मिल रही है। देखिए कैसे, देखिए हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये देखिए फर्स्ट रे का पाथ अगर डॉटेड आपने ड्रा किया, ये सेकेंड का डॉटेड पाथ, एंड दिस इज द थर्ड लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डॉटेड पाथ है, और ये फोर्थ का। तो आपको क्या मिला, ये फोर रिफ्लेक्टेड रेज अगर आप पीछे की तरफ इसको डॉटेड ड्रॉ कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे ऐसा आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पे कट करेगा। दैट अपीयरेंस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ। और लास्ट में एक पॉइंट हमने मेंशन किया है, द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल। दैट मीन्स हमने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन, जब इमेज की डेफिनेशन बताई थी, इफ़ लाइट रेज इज एग्जैक्टली मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट इज नोन एज द इमेज, दैट मीन्स रियल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेम आपका यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि हाँ यहीं से पास हो रही हैं लाइट रेज, कट करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द रियल। एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट इज़ वर्चुअल। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है द फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज,
रियल, वर्चुअल, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा रियल। या आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो आपका आंसर होगा रियल। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट इज वर्चुअल। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल, अभी प्रिंसिपल फोकस आपने पढ़ा, अब इसमें अब आपको देखा है कि फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ देखिए डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। पोल आपको पता है मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फोकस आपको कंफर्म है आफ्टर रिफ्लेक्शन all light rays are meet or appear to meet on a point at the principal axis, that point is known as the principal focus। तो यहीं से आपको डेफिनेशन मिलेगी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर आपको फोकस सिर्फ रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। फिगर में देखिए P और F के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फिगर में हमने शो कर रखा है। ओके गाइज, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। मीन्स अब आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उसी को अपने माइंड में सेट करके लेके चलना होगा जब आपको हम बताएंगे इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपका है जो अभी आपने यूज़ किया प्रिंसिपल फोकस में, वही यहाँ पे यूज़ होगा। और तो देखिए फर्स्ट रूल, द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस ये देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर गए हैं, यहीं पे आपको और जानना होगा कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है। तो गाइज जो फोकस प्रिंसिपल फोकस आपका होता है वो एग्जैक्टली मिड में होता है, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर रिलेशन आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू द 2F, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर, ये हम यहाँ पे मिस कर गए हैं, इसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अगेन वी स्टार्ट रूल्स, अगेन रिपीट द फर्स्ट रूल। अब देखिए फर्स्ट रूल को पढ़ रहे हैं उन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इसके रिस्पेक्ट में हम आपको रे डायग्राम से एनिमेशन से शो भी करेंगे। ठीक है, द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the principal focus in case of concave mirror। कॉनकेव मिरर में के केस में अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, हमेशा वो प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी। क्लियर, तो देखिए इसका रे डायग्राम शो करते हैं। देखिए लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर पे आ गई, इंसिडेंट हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। देखिए प्रिंसिपल फोकस दोनों के देखिए C और P के एग्जैक्टली मिड में है, इसीलिए हमने अभी आपको रिलेशन बताया कि जो फोकल लेंथ होगा वो 2 टाइम्स होगा, वो इक्विवेलेंट होगा रेडियस के। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर C से P की भी जो डिस्टेंस होगी वो इक्विवेलेंट होगा 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्लियर गाइस। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ये हमेशा यहीं से क्यों पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस से वो डाइवर्स होती दिखाई देगी। कैसे, देखिए इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग नेचर का, तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो डाइवर्स कर गया। ठीक है, बट ये आपको शो होगा कि अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं इस रिफ्लेक्टेड रेस को जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो वो फोकस से ही पास होगी। ये देखिए फोकस से ही पास हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आपको लगेगा कि ये फोकस जो आपका है कॉन्वेक्स मिरर का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज लाइक ए
लाइट सोर्स, ठीक है। तो लाइट सोर्स एज लाइक अगर होगा तो मतलब लाइट रेज यहाँ से निकल रही होंगी, इसीलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है डाइवर्स फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। अब देखिए, अब रे आपको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसी डॉटेड रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट पॉइंट पे जा रही है। गाइस आपको पता होगा कि किसी भी सरफेस दैट मीन्स किसी भी सर्कल के अगर सरकमफेरेंस पे आप कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट लाइन को जिस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो रेडियस और वो टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। आई होप ये आपको कंफर्म होगा। और हमने आपको रिफ्लेक्टिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ये डॉटेड लाइन है ये आपकी बिहेव करेगी एज लाइक ए नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे जो आपका एंगल बनेगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होगा वो होगा इंसिडेंट एंगल, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल जो होगा वो आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दोनों एंगल हमेशा सेम होगा। जैसे ही आप लाइट रे जो आपकी पैरेलल आ रही है उसको आगे या पीछे की तरफ मीन्स इस सरफेस पे आगे पीछे पोजीशंस की चेंज करेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चेंज होगी, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। और वो इन ऑल द केसेस ऑलवेज रिफ्लेक्टेड रेज पासेस थ्रू द फोकस। क्लियर। देखिए सेम आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होगा। देखिए ये, अब आप देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, नेक्स्ट सेकेंड रूल, द रे कमिंग जस्ट फर्स्ट का अपोजिट है। अभी आपने देखा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रही थी। अब जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। अब आपकी लाइट रे फोकस से इंसिडेंट हो गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द रूल इज द रे कमिंग through the focus of a concave mirror or coming towards focus of a convex mirror becomes parallel to principal axis after reflection from the mirror। देखिए रे डायग्राम से शो कर रहे हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे which is passes through the principal focus after reflection it becomes parallel to the principal axis। okay, similarly in case of convex mirror, in case of देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको ये कैसे पता होगा कि ये लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है, तो देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कमिंग टूवर्ड्स फोकस, तो हमने इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट किया। देखिए तो ये डॉटेड लाइन को अगर आप सीधे आगे बढ़ाएंगे उस लाइट रेस को तो वो फोकस पे आके मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों को आप लर्न कर सकते हैं इजली। थर्ड रूल, a ray passes through center of curvature of a concave mirror or towards the direction of center of curvature of a convex mirror reflect back along the same path। सेम कंडीशन है जो हमने आपको बता रखा था कि if the light ray incident on the surface perpendicularly, that means to follow the path of the normal, ठीक है। in this case the light will reflect to follow the same path of the incident ray। अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंसिडेंट हो रही है तो वो विदाउट रिफ्लेक्शन दैट मीन्स एनी एंगल के रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए पीछे की तरफ वापस हो जाएगी, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे भी है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी वही होगा, उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो लाइट रे सेंटर से आ रही थी, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड थी, तो हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आप भी ऐसे ही सेम डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ओके, एंड रूल नंबर 4 दैट इज द लास्ट रूल, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ मिरर is reflected back making the same angle with principal axis। that means ये आपका सेकेंड रूल जो हमने आपको बता रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वही सेम यूज़ होगा। लाइट रे आपकी इंसिडेंट हो रही है एट द पोल मेकिंग एंगल किसी भी एंगल पे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो भी एंगल बना के आएगी दैट मीन्स वो होगा आपका इंसिडेंट एंगल। और सेम
एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर के केस में था, और ये देखिए लाइट रे इंसिडेंट हुई पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। ओके, तो गाइज ये आज का लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड आपको समझ में भी आया होगा। हमने विजुअलाइजेशन करने का एफर्ट किया है। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कैसा लगा वीडियो ये हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ओके गाइस।